Assalamu alaikum, dear students. Today we will study about sexual reproduction. As in our last video, we completed our sexual reproduction mode of reproduction and we studied different types of asexual reproduction. Now let us start today sexual reproduction. Sexual reproduction, it is a production of a new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes. And in sexual reproduction, male gamete that fuse with a female gamete to form a new cell that is known as zygote. And this zygote then grows and develops into a new organism in due course of time. And the cells that are involved in sexual reproduction, they are known as sex cells or gametes. And human beings or animals, we can say, they reproduce by sexual method, and their two parents are involved in sexual reproduction. And let us today first discuss about sexual reproduction in flowering plants. The plants in which sex organs are carried within the flowers and the seeds are enclosed in the fruit, they are known as angiosperms. What are angiosperms? Angiosperms are flowering plants in which sex organs are carried within the flowers. And these flowering plants, they reproduce by sexual reproduction method because these have sex organs within their flowers. और जो ये होते हैं sex organs, or we can say reproductive organs of a plant, they are in its flowers. Like human beings, plants also have male and female sex organs, though they are different in form from humans. और जो ये function of flower होती है, its function is to make a male and female gamete and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for reproduction of plant. Sexual method reproduction is most common method of reproduction in these plants, flowering plants. It is on this type of reproduction takes only place in the case of flowering plants. And the sexual reproduction in plants that takes place in following steps. जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, that is known as stamen, and a stamen that makes the male gamete or male sex cells, and these male gametes are present in pollen grains. And this means male organ of flower, they are known as stamens, and female organ of flower, they are known as carpels. And female gametes, they are present in ovules, and female gamete जो होता है present in pollen grains, they fertilize with the male gamete or egg cells that are present in ovules. जो ये fertilized egg है, that grows within the ovules and they become seeds. और जो ये seeds है, they become new plants on germination when they get favorable conditions like water, warmth, air, light. ठीक है. Now let us now describe the various parts of flower and how sexual reproduction takes place in plants. Here is a flower. You can see the main parts of flower are receptacle, spells, petals, stamen and carpel. जो main parts of flower है, they are shown in figure, and let us discuss them one by one. The receptacle जो होता है वो होता है base of flower, जिसको ये बाकी सारे parts attach होते हैं, that is known as receptacle. And
आप देख सकते हैं सेपल्स जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, small leaf like green leaf like parts in outermost circle of a flower, they are known as sepals. And all sepals when they are taken together they are known as calyx. एंड जो इसकी फंक्शन है कैलेक्स की या कैन से सेपल्स, इसकी फंक्शन है ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन इट्स इनिशियल स्टेज। जब फ्लावर होता है फॉर्म अ बड, वैन सब जो होते हैं इसके बाकी पार्ट्स वो नहीं डेवलप हुए होते हैं, जो सेपल्स होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं वैन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बड। सेकेंड यू कैन सी पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं ये होते हैं कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। जो आप देखते हो रेड कलर, ये लीव्स कलरफुल पार्ट दैट इज नोन एज पेटल्स। और पेटल्स जो होते हैं दे आर इनसाइड सेपल्स, or all the petals taken together they are known as corolla, all the sepals taken together they are known as calyx, all the petals taken together they are known as corolla। और जो पेटल्स होते हैं यूजुअली सेंटेड होते हैं एंड सेंटेड मीन्स इनमें अच्छी बू होती है। और जो फंक्शन ऑफ पेटल्स की होती है वो होती है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के वो उसके अंदर के सब पेटल्स के बीच में होते हैं। एंड हियर यू कैन सी अनदर पार्ट स्टेमन। जो स्टेमन है इट इज़ दिस लिटिल स्टॉक्स विद स्वेलोन टिप्स, जो आप येलो कलर के देखते हो, एंड दे आर जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स। जो स्टेमन होता है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। और जो स्टेमन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। यू कैन सी हियर दिस इज एंथर swellon tip and this is filament। और जो स्टॉक ऑफ स्टेमन होता है दैट इज नोन एज फिलामेंट, और जो टॉप होता है इसका दैट इज नोन एज एंथर। एंड जो एंथर ऑफ स्टेमन होता है इसकी क्या फंक्शन है, इट मेक्स द पोलन ग्रेन्स एंड स्टोर्स देम, एंड दीज पोलन ग्रेन्स दे अपीयर टू बी येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा दे कंटेन द मेल गैमेट्स और मेल सेक्स सेल्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, दस यू रिमेंबर स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और इसके दो पार्ट्स होते हैं एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट होता है स्टॉक ऑफ दिस स्टेमन एंड एंथर होता है स्वेलोन टिप, और इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स ही बनाते हैं मेल गैमेट्स और मेल सेक्स सेल्स। And next is here you can see pistil or we can say carpel। it is जो carpel होता है it's center of a flower which is flask shaped organ, and that is known as carpel or pistil। and this carpel is female reproductive organ of a plant। जो carpel होता है it's also made up of three parts, stigma, style and ovary। this means जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है इसके भी तीन ऑर्गन्स, तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो टॉप पार्ट ऑफ कार्पल होता है दैट इज नोन एज स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा की क्या फंक्शन होती है, इट इज फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, दिस मीन्स दिस स्टिग्मा इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर। ये कैसे रिसीव करता है इनको, जो स्टिग्मा होता है ये स्टिकी होता है, सो दैट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे स्टिक टू द दिस स्टिग्मा। और जो मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल होता है दैट इज नोन एज स्टाइल। जो स्टाइल होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। ठीक है, और जो स्वेलोन पार्ट एट द बॉटम ऑफ
A carpel that is known as ovary. और जो ovary है, it makes ovules and it stores them. This ovary it makes female gametes. जो इसमें ovules होते हैं, those ovules they contain the female gametes or female sex cells of a plant. और there are usually many ovules in the ovary. इसमें बहुत सारे ovules होते हैं. And each ovule contains one female gamete of a plant. ठीक है. Thus you remember, it is clear here that female gamete of a plant that are made in ovary of a carpel and male gamete of a plant that are made in stamen, और stamen की किस पार्ट में, एंथर में. ठीक है. And here you remember carpel जो है, it has two parts. Carpel is also known as pistil. ठीक है. This is structure of flower and what are different parts of flower. ठीक है. और ना हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन, ये पॉलिनेशन कैसे, how it takes place. और आपको यहाँ ये भी याद रखना कि there are some flowers which contain only one sex organ, either stamen or carpel. They are known as unisexual flowers. और कुछ plants ऐसे भी होते जो bisexual होते. They contain both female as well as male sex organs and that are known as bisexual flowers, like this hibiscus plant या mustard plant. They are bisexual plants. And जो for example watermelon या papaya plant, they are unisexual. This means they contain only one sex organ, either stamen or carpel. अब हम देखते हैं कि न्यू सीड जो है प्लांट की कैसे बनती है. ये कैसे बनती है? इट्स फॉर्म्ड व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन अ पोलन ग्रेन दैट यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स और जो ये फीमेल सेक्स सेल्स है, एग्स, ये कैसे फर्टिलाइज होते हैं. इससे पहले हमने देखना है कि ये पॉलिनेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of stamen to the stigma of carpel. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of carpel. And if the transfer of pollens occurs in the same flower or another flower of same plant, अगर जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक ही फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, देन या एक ही पेड़ के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, देन इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. गॉट इट? एंड if the pollen is transferred from the anther of a flower of one plant, एक पेड़ के फ्लावर से pollens transfer होते to the stigma of flower of another plant, then it is known as cross pollination. और जो pollination है, it is also done by some agents like insects, birds, winds. ठीक है. And now we will see how this pollination takes place. Like हम insects की example लेंगे. When an insect, when it sits on a flower of a plant for sucking nectar, जो pollen grains होते हैं एंथर के इस flower के, that stick to its body, and when it sits on another flower of another similar plant, the pollen grain sticks to the body. Sticking to its body, they are transferred to the stigma of the second flower. In this way, this insect that transfers pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. ठीक है. या blowing wind से भी ये pollen grains carry होते हैं from one flower to another flower and they help in pollination. अब हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन, अब जब ये पोलन ग्रेन्स पहुंच गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, अब कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. जो फर्टिलाइजेशन होती है, इट ऑकर्स व्हेन मेल गैमेट जो होता है प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन व्हेन इट जॉइंस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल. ठीक है. ये कैसे होता है? दिस हैपेंस एज फॉलोज. जो
मेल गैमेट होता है when pollen grains falls on the stigma of carpel. जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ये बर्स्ट होता है एंड जो इसमें पोलन ट्यूब्स होते हैं and it grows on this pollen grain, it grows its pollen tube towards the style of the ovary. ठीक है, एंड फिर क्या होता है, जो जब ये पोलन ग्रेन्स when they reached the ovary, इसमें क्या होता है, ओवरी में जो मेल गैमेट होते हैं पोलन्स के, they combine with the nucleus of a female gamete or egg present in the ovule to form a fertilized egg that is known as zygote. ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट सेल्स अब ये कंबाइन होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है दैट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, और जो ओव्यूल है इट डेवलप्स अ टफ कोट एंड इट जनरली कन्वर्ट्स इट इनटू अ सीड। ठीक है, दिस मीन्स जो ये होता है ओवरी ऑफ फ्लावर जो होती है दैट डेवलप्स एंड बिकम्स ए फ्रूट, एंड जो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, दे ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। ठीक है, दिस मीन जो ओव्यूल होता है बेटा, ओवरी होती है, यही क्या बनती है, फ्रूट ऑफ ए फ्लावर, जिसमें क्या होते हैं, सीड्स, और जो बाकी पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं दे ड्राई अप एंड दे फॉल ऑफ। फिर जो ये सीड होता है, ये बीज होता है इस प्लांट का, यही बनता है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दैट प्लांट, और जो ये सीड होता है इसमें होता है बेबी प्लांट और वी कैन से एम्ब्रियो एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट। ठीक है, फिर हम इससे जब हम एक साल कुछ ये पेड़ बोते हैं, हम फिर उसका सीड ऐसे रखते हैं, दूसरे साल हम फिर वही सीड डालते हैं, उसी से फिर नए पेड़ उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। दिस मीन्स जो ये पार्ट ऑफ बेबी प्लांट है इन सीड जो डेवलप होता है शूट में विथ लीव्स दैट इज नोन एज प्लीम्यूल, एंड जो पार्ट डेवलप होता है रूट में दैट इज नोन एज रेडिकल। किसका, बेबी प्लांट का। जब हम अगले साल इसको और डालते हैं मिट्टी में एंड वुड प्रोवाइड इट विथ फेवरेबल कंडीशंस, और जो बेबी प्लांट का जो पार्ट होता है सीड का जो डेवलप होता है इनटू शूट दैट इज नोन एज प्लीम्यूल, और जो डेवलप होता है इनटू रूट दैट इज नोन एज रेडिकल, और जो पार्ट ऑफ सीड जो होता है दैट कंटेन्स स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट दे आर नोन एज कॉटलीडन्स। ठीक है, एंड व्हेन द सीड्स व्हेन दे गेट सूटेबल कंडीशंस लाइक वार्मथ, उनमें क्या होती है जर्मिनेशन एंड ए न्यू प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ ए सीड। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से जो पेरेंट प्लांट होता है दैट प्रोड्यूस मोर प्लांट्स बाय इटसेल्फ by forming seeds through flowers. In this way, the sexual reproduction that takes place in the flowering plants. That was all about it. इसमें अब आपको 2 क्वेश्चंस आए। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें भी आपने यही लिखना है। अगर आप इसमें आए आपको भी आता है क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वो क्वेश्चन भी हमने इसी में पढ़ा, उसमें आपने लिखना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और फिर इनका लिखना है किस पार्ट को क्या हम बोलते हैं, इनको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दैट वाज ऑल अबाउट दिस sexual reproduction in flowering plants.